Hello dear students of class 5th, this is Priyanka Arora welcoming you all to Maths online class. So students, we were doing chapter number 7 metric measures and till now I have given you the explanation of all the questions of exercise 7A and 7B. Along with it, I have explained you the 3 tables of metric measures. I hope you all remember those 3 tables of metric measures. And today in this particular video, I will be explaining you all the questions of exercise 7C. So without any more delay, let us begin with exercise 7C. So students, before beginning with the questions of exercise 7C, let me give you the quick recapitulation about the 3 tables of metric measures, that is according to length, mass and capacity. So students, as I told you, the main unit of length is meter, m. The main unit or the standard unit of mass is gram, G, and the main unit of capacity is L, liter. And the complete series of length is kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter. The complete series of mass weight is kilogram, hectogram, decagram, gram, decigram, centigram, milligram. And the complete series of capacity is kiloliter, hectoliter, decaliter, liter, deciliter, centiliter, milliliter. Now, keeping these 3 metric measures table in your mind, we will be starting exercise 7C. So, question number 1 of exercise 7C is students, express the following as a decimal of kilometer. That means whatever units are given in all the parts, we have to convert those units in kilometer. Kilometer, that means the table of, yes, the table of length. Okay. So, as you can see that I have already written the table of length here, kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter. And one by one we will see that which unit we have to convert. So, it is written in the question that we have to convert it into kilometer. So, the first one is given in kilometer already. जो first number के साथ में unit given है वो किलोमीटर में already given है, तो इसको तो हम convert नहीं करेंगे because it is already given in kilometer. So we will move with the second number and the second unit. So the second number is 1 and then हेक्टोमीटर, दिस इज द सेकेंड यूनिट. तो पहले हम फॉर्मूला फ्रेम करेंगे, एज हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जो आप फॉर्मूलाज फ्रेम करेंगे वो सारे फॉर्मूलाज किलोमीटर के रिलेशन में आप फ्रेम करेंगे. तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला फ्रेम करना है वो किलोमीटर और हेक्टोमीटर के बीच में फ्रेम करना है. और किलोमीटर और हेक्टोमीटर के बीच में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के ओनली 1 प्लेस का गैप है. अगर 1 प्लेस का गैप है तो दैट मीन्स 10. ओके, जितनी प्लेसेस का गैप होगा उतने ही जीरोस हम प्लेस करेंगे. सो 1 प्लेस का गैप है तो 10, 2 प्लेस का गैप है तो 100 और 3 प्लेसेस का गैप है तो 1000. सो अभी यहाँ पे 1 प्लेस का गैप है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मूला 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 हेक्टोमीटर. सेकंड के बाद में थर्ड आप देखिए यूनिट DAM गिवन है, दैट मींस डेकामीटर गिवन है. तो अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा किलोमीटर और डेकामीटर के बीच में. तो आप देखिए किलोमीटर और डेकामीटर के बीच में कितनी प्लेसेस का गैप है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल 2 प्लेसेस का गैप है. 2 प्लेसेस मींस 100. तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 डेकामीटर. एंड रिमेंबर, आप लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटर यूनिट को ही प्लेस करोगे. तो किलोमीटर और डेकामीटर में से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है किलोमीटर, तो किलोमीटर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आ जाएगा स्मॉलर, दैट इज डेकामीटर. थर्ड जो हमें फॉर्मूला बनाना है वो मीटर के बीच में बनाना है, क्योंकि जो लास्ट यूनिट गिवन है क्वेश्चन में वो है मीटर. सो किलोमीटर और मीटर के बीच में आप देखिए टोटल 3 प्लेसेस आ रही है. 3 प्लेसेस दैट मीन्स 1000. तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा 1000. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इज टू फ्रेम द फॉर्मूला. अगर आपने फॉर्मूलाज फ्रेम कर लिए देन टू सॉल्व द क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू स्टूडेंट्स. नाउ सी, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला फ्रेम करने के बाद में 5 किलोमीटर को एज इट इज प्लेस करेंगे और 1 हेक्टोमीटर को प्लेस करने से पहले आप लगाएंगे प्लस का साइन. दैट मीन्स जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको आप एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, लेकिन हर नंबर के बाद में, हर यूनिट के बाद में आपको एक एडिशन का साइन प्लेस करना है. तो आप देखिए 5 किलोमीटर के बाद में मैंने एडिशन का साइन प्लेस करा है, देन 1 हेक्टोमीटर, अगेन एडिशन साइन, देन 2 डेकामीटर, अगेन एडिशन साइन एंड देन 5 मीटर.
ओके, सिंपली हमने इसको एक्सपैंडेड फॉर्म के अंदर इन अदर सेंस यू कैन से दिस दैट वी हैव रिटन इट इन एक्सपैंडेड फॉर्म. नाउ one by one we have to solve it. As first number is given with किलोमीटर ओनली, हमें किलोमीटर में चेंज करना था, तो फर्स्ट नंबर यूनिट के साथ में एज इट इज हम प्लेस कर देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. 5 किलोमीटर एज इट इज आप मेंशन करोगे, देन प्लस का साइन. अब जो है नेक्स्ट नंबर वो है 1 हेक्टोमीटर. तो आप हेक्टोमीटर वाला फॉर्मूला देखिए, हेक्टोमीटर में क्या था 10, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है. हमें हेक्टोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, और अगर हम हेक्टोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं दैट मीन्स हम करेंगे डिवीजन. डिवीजन करने के लिए आप 1 के नीचे लगाएंगे अपॉन का साइन, एंड डिनोमिनेटर में आप क्या प्लेस करेंगे, 10, 100 या 1000. यस, हम डिनोमिनेटर में प्लेस करेंगे 10, क्योंकि हेक्टोमीटर वाले फॉर्मूला में क्या आ रहा था स्टूडेंट्स, 10. तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी हम क्या प्लेस करेंगे, 10. नेक्स्ट नंबर के साथ में जो यूनिट है वो है डेकामीटर. तो डेकामीटर वाला फॉर्मूला देखिए आप, यहाँ पर डेकामीटर के साथ में आ रहा है 100. यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेकामीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 को डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि डेकामीटर वाले फॉर्मूला में है हमारे पास में 100, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय 100. नाउ 5 के साथ में है यूनिट मीटर, और मीटर वाले फॉर्मूला में हमारे पास में है नंबर 1000. That means to convert meter into kilometer we have to divide the given number by 1000. तो 5 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1000 से. और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान रखनी है, आप देख सकते हो कि यूनिट्स चेंज हो गई है. फर्स्ट वाले में तो किलोमीटर की था, सेकंड में देखिए हेक्टोमीटर चेंज होके हो गया किलोमीटर, डेकामीटर भी चेंज होके हो गया किलोमीटर, और मीटर भी चेंज होके हो गया किलोमीटर, क्योंकि हमने इन सारे नंबर्स को कर दिया है डिवाइड अकॉर्डिंग टू द formula. Now in next step we have to simply convert it into decimal. Division के अंदर आप देखिए 10, 100 और 1000 है, तो डेसिमल चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 10 आता है तो एक डिजिट के पहले डेसिमल आता है, 100 आता है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल आता है, और 1000 आता है तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल आता है. तो यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर एज इट इज आ जाएगा. 5 किलोमीटर के बाद में हमें लिखना है 1, तो 1 को आप कैसे लिखेंगे, पहले आप लिख देंगे 1, ओके, और 1 के पहले हमें लगाना पड़ेगा डेसिमल, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है 10, तो एक डिजिट के पहले ही डेसिमल आएगा, और डेसिमल को आप कवर कर दोगे 0 से, तो ये हो जाएगा 0.1. तो देखिए कन्वर्ट होके हो गया 0.1. 2 अपॉन 100, इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में 100 है तो हमारा जो डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो 2 डिजिट के पहले आएगी, और न्यूमरेटर में हमारे पास है ओनली नंबर 2. सो इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 के पहले लगाएंगे 0, और 0 के पहले लगाएंगे डेसिमल, और डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से. सो कन्वर्ट होके हो जाएगा ये 0.02, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है. और 5 अपॉन 1000 दैट मीन्स 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, लेकिन हमारे पास में है ओनली नंबर 5. सो 5 को 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 के पहले 2 जीरोस लगाएंगे, तो अब हो गए हमारे पास में 3 डिजिट्स. 3 डिजिट्स के पहले आप सिंपली लगाइए डेसिमल, और डेसिमल को कवर कर दीजिए आप 0 से, तो आ गया हमारे पास में 0.005 एंड देन किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, कि इसको करना होगा आपको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट, क्योंकि आप देख सकते हो जो फर्स्ट यूनिट है उसके साथ में है 5, 5 के साथ में डेसिमल ही नहीं है. यहाँ पे डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पर 3 डिजिट. इस तरीके से हम एडिशन नहीं कर पाएंगे, तो पहले हमें इस अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद में इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस होनी चाहिए. सो फर्स्ट नंबर के अंदर डेसिमल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है तो हम खुद उसके अंदर डेसिमल को प्लेस करेंगे. तो यहाँ पर जो 5 है आप 5 एज इट इज लिखोगे, अब आप खुद डेसिमल प्लेस करोगे. अब आपको डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स चाहिए, दैट मीन्स आप डेसिमल के बाद में लगा देंगे 3 जीरोस, तो ये कन्वर्ट हो गया लाइक डेसिमल में. तो आप देखिए यहाँ पर पहला नंबर आ जाएगा 5.000 किलोमीटर, यहाँ पर है 0.1. ओके, ये था यहाँ पे 0.1. इसको भी हमें क्या करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स डेसिमल के बाद में हमें चाहिए 3 डिजिट्स, लेकिन अभी है हमारे पास में ओनली 1 डिजिट. तो इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप डेसिमल के बाद में 1 के बाद में लगा देंगे 2 मोर जीरोस, तो ये भी हो गया लाइक डेसिमल में कन्वर्ट. और नेक्स्ट था 0.02. तो इस 0.02 में डेसिमल के बाद में ओनली 2 डिजिट थी, हमें चाहिए 3 डिजिट, तो हम 2 के बाद में लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा 0.020. और 0.005 एज इट इज आ जाएगा. नाउ
सिंपली अब आपने जब इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है तो आपको सिंपली इसको करना है अरेंज इन द कॉलम एंड देन एड इट. सो सी 5.000, 0.100, देन 0.020 एंड 0.005. कैसे करते हैं एडिशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं एक्सरसाइज 5F में, चैप्टर नंबर 5 डेसिमल्स से. सो ऐड करिए. Addition you already know how to do the addition. So after addition you will get the result as 5.125 and unit will come as kilometer as we have to convert this particular question in kilometer. Okay students? So in the same way we do the remaining parts. So let us move on to part B. Part B में देखिए वही पहले हम करेंगे हमारे formulas frame. So फर्स्ट जो नंबर है वो ऑलरेडी किलोमीटर में गिवन है, हमें किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना है, तो इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये एज इट इज आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए 3 डेकामीटर, दैट मीन्स जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो किलोमीटर और डेकामीटर के बीच में बनेगा. सो किलोमीटर और डेकामीटर के बीच में 2 प्लेसेस आ रही हैं, 2 प्लेसेस मीन्स 100, तो हमारे फॉर्मूला में आ जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 डेकामीटर. ओके. नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनाना है वो हमें किलोमीटर और मीटर के बीच में बनाना है, तो ये है किलोमीटर और ये है मीटर, तो टोटल 3 प्लेसेस आ रही हैं इसके बीच में, 3 प्लेसेस दैट मीन्स 1000, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. अगेन पे अटेंशन दैट इन दिस क्वेश्चन आल्सो वी आर कन्वर्टिंग द स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट, स्मॉलर इनटू बिगर दैट मीन्स डिवीजन. सो अगेन फर्स्ट स्टेप यू विल राइट द क्वेश्चन इन एक्सपांडेड फॉर्म. आप एक्सपांडेड फॉर्म में लिखिए, दैट मीन्स 9 किलोमीटर प्लस 3 डेकामीटर प्लस 4 मीटर. तीनों यूनिट्स के बीच में एडिशन का साइन लगा दिया. अब 9 किलोमीटर स्टूडेंट्स एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर देखिए. अब 3 के नीचे आ जाएगा 100. 100 क्यों आएगा? क्योंकि डेकामीटर वाले फॉर्मूले में देखिए आपको फॉर्मूला प्लेस कर देना और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही डिनोमिनेटर में आप वैल्यू प्लेस करोगे. डेकामीटर वाले फॉर्मूला में है 100, तो यहाँ पे जब हम डेकामीटर वाले नंबर के साथ में फॉर्मूला प्लेस कर रहे हैं तो 3 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100. अब मीटर वाले फॉर्मूला में देखिए क्या है 1000, सो 4 के नीचे आप क्या प्लेस कर देंगे 1000. नाउ सिंपली आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में. सो यहाँ पर जो 9 किलोमीटर है ये तो एज इट इज मेंशन कर देंगे आप सेम 3/100, दैट मीन्स 2 डिजिट के पहले हमें डेसिमल प्लेस करना है, बट हमारे पास क्वेश्चन में है ओनली 1 डिजिट, तो अब 0 जब हम 3 के आगे प्लेस कर देंगे तो हो गई 2 डिजिट्स. इसके आगे आप डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 0.03 किलोमीटर. इसी तरीके से जब आप 4/1000 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो पहले आप लिखेंगे 4 न्यूमरेटर. 3 डिजिट के पहले डेसिमल चाहिए लेकिन हमारे पास ओनली 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे. तो 4 के पहले हम लगा देंगे 2 जीरोस. अब ये हो गई 3 डिजिट्स. अब लगाएंगे इसके पहले आप डेसिमल और डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से, तो ये हो जाएगा 0.004. अगेन स्टूडेंट सी इट इज नॉट गिवन इन द लाइक डेसिमल्स, तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट. 9 जो कि सिंगल नंबर 9 था, इसके साथ में डेसिमल नहीं था, तो हम लगाएंगे डेसिमल और इसके बाद में लगा देंगे 3 डिजिट्स. 3 डिजिट्स क्यों? क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स हमें 3 चाहिए डेसिमल के बाद में, तो यहाँ पर 000 आ जाएगा. और जो सेकंड नंबर था 0.03, इसमें भी हम क्या करेंगे 2 डिजिट्स थी तो एक 0 प्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.030. नाउ अब इस स्टेप के बाद में आप सिंपली कॉलम में अरेंज करिए, ऐड करिए, आपका आंसर आ जाएगा 9.034 और लास्ट में आप करेंगे यूनिट प्लेस किलोमीटर. फाइन. नाउ सी पार्ट 3 किलोमीटर, इसमें भी 3 किलोमीटर आप एज इट इज प्लेस करेंगे प्लस 8 मीटर. ओके. किलोमीटर का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम मीटर और किलोमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मीटर और किलोमीटर 3 प्लेसेस हैं, दैट मीन्स आ जाएगा 1000. मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो इसमें भी होगा डिवाइड, 3 किलोमीटर एज इट इज आएगा, 8 के नीचे आ जाएगा 1000. 8 के नीचे 1000 आया है, तो डेसिमल में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिजिट के पहले आएगा डेसिमल. 8 है हमारे पास में, तो 8 के पहले हम लगा देंगे 2 जीरोस, इसके आगे लगाएंगे डेसिमल और डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से, तो ये हो गया 0.008 किलोमीटर. अब 3 जिसके साथ में डेसिमल नहीं था, तो आप डेसिमल प्लेस करेंगे और डेसिमल के बाद में लगा देंगे 3 जीरोस. अब क्योंकि ये लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गया है, तो आपको सिंपली इसको कॉलम में अरेंज करना है एंड देन यू हैव टू ऐड टू गेट द आंसर एज 3.008. नाउ डी पार्ट इज सिमिलर एज सी पार्ट. डी पार्ट जो है सिमिलर है सी पार्ट के, तो आप इसको कर सकते हैं. देखिए 8 किलोमीटर एज इट इज आएगा, बीच में प्लस का साइन. मीटर को किलोमीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे हम. 3 डिजिट के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल, तो यहाँ पर है हमारे पास में न्यूमरेटर में ओनली 85,
तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3 डिजिट में। तो 85 के पहले लगाया हमने 0, 0 के पहले लगाया हमने डेसिमल और डेसिमल के पहले लगा दिया हमने 0। तो कन्वर्ट करने के बाद में हो गया ये 0.085। फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप में कर दीजिए लाइक डेसिमल में। डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं यहाँ पर, तो 8 के बाद में भी हम लगा देंगे 3 zeros to convert it into like decimals and then arrange it in column and then do the addition as I have done. So you will get the answer as 8.085 kilometer. So there we have done question number first. Now let us move on to question number 2. Here we have to convert the given units in decimal of meter. Decimal of meter, that means meter comes in the table of length. Again we have to follow the table of length here. That means kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter. Now one by one same way we have to do. जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही प्रोसेस हमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी फॉलो करना है. द मेन थिंग इज टू फ्रेम द फॉर्मूलाज. सो सी 5 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है. 5 मीटर एज इट इज आएगा. अब आप लगाएंगे प्लस का साइन, 2 डेसीमीटर प्लस का साइन 5 सेंटीमीटर. ओके, तो फॉर्मूला हमें बनाना है डेसीमीटर और मीटर के बीच में. ये है डेसीमीटर और ये है मीटर. तो मीटर और डेसीमीटर में से ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर है मीटर. तो फॉर्मूला में पहले आ जाएगा 1 मीटर इज इक्वल्स टू मीटर और डेसीमीटर के बीच में ओनली 1 प्लेस का गैप है. दैट मीन्स आ जाएगा 10 डेसीमीटर. नाउ सेकंड फॉर्मूला हमें बनाना है मीटर और सेंटीमीटर के बीच में. तो मीटर और सेंटीमीटर में से ग्रेटर है मीटर, तो पहले आ जाएगा 1 मीटर और मीटर और सेंटीमीटर के बीच में 2 प्लेसेस का गैप है, तो फॉर्मूला आ जाएगा 100 सेंटीमीटर. Here also students we have to convert the smaller unit into bigger unit. That means we will do division. Division by 10 and division by 100. So see, डेसीमीटर के अंदर हम डिवाइड करेंगे 10 से क्योंकि डेसीमीटर के फॉर्मूला में है 10, और सेंटीमीटर के अंदर हम डिवाइड करेंगे 100 से क्योंकि सेंटीमीटर के फॉर्मूला में है 100. अब अपॉन में जब 10 और 100 आ जाता है तो सिंपली 10 के अंदर जैसा मैंने बताया एक डिजिट के पहले आप डेसिमल लगाएंगे और 100 में 2 डिजिट के पहले. तो यहाँ पर न्यूमरेटर में है नंबर 2 के पहले आप लगाएंगे डेसिमल एंड देन यू हैव टू कवर दिस डेसिमल बाय पुटिंग 1 0, तो हो जाएगा 0.2. और सेकंड नंबर है 5 न्यूमरेटर में, 5 के नीचे है 100. दैट मीन्स हमारा जो डेसिमल लगेगा 2 डिजिट्स के पहले लगेगा, तो 5 के पहले लगाइए 0, 0 के पहले लगाइए डेसिमल और डेसिमल को कवर कर दीजिए 0 से. नाउ यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है आफ्टर डेसिमल वो है 2. यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1. तो हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सब जगह 2 प्लेसेस चाहिए डेसिमल के बाद में. अगेन 5 के साथ में डेसिमल की प्लेसमेंट है ही नहीं, तो हम 5 के साथ में डेसिमल लगाएंगे और 2 जीरोस प्लेस कर देंगे. देन 0.05, यहाँ तो डेसिमल के बाद में ऑलरेडी 2 प्लेसेस है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. 0.2, यहाँ पे डेसिमल के बाद में ओनली 1 प्लेस है, तो यहाँ पर आप 0 लगा दीजिए और डेसिमल के बाद में हो गई 2 डिजिट सब जगह. तो दैट मीन्स ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है. अब कॉलम में अरेंज करिए एंड देन डू एडिशन. नाउ same way you have to do the remaining parts of question number 2 also. So I think now B part, C part and D part you can do it yourself because it's not that much difficult since you have done question number 1. So question number 1 के जैसा ही बिल्कुल question number 2 है, बस वहां पे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना था और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. So here okay, I am explaining one more part of question number 2, that is part D. See 6 मीटर एंड 47 सेंटीमीटर. यहाँ पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में लगा देंगे आप प्लस का साइन. अब देखिए ये तो ऑलरेडी मीटर में गिवन है फर्स्ट वाला नंबर, तो आप 6 मीटर का 6 मीटर एज इट इज मेंशन करेंगे, प्लस का प्लस एज इट इज. अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो सेंटीमीटर और मीटर के बीच में बनेगा. सो सेंटीमीटर और मीटर के बीच में 2 प्लेसेस आ रही हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हम करेंगे डिवाइड, और डिवाइड किससे करेंगे, फॉर्मूला वाले नंबर से, दैट मीन्स 100 से. 100 से डिवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स जो डेसिमल लगेगा नेक्स्ट स्टेप में वो 2 डिजिट्स के पहले लगेगा. तो 2 डिजिट्स हैं हमारे पास ऑलरेडी न्यूमरेटर में, तो हमारा जो डेसिमल है वो 4 के पहले लगेगा और डेसिमल को हम कवर कर देंगे 0 से. अब हम वापस इसको करेंगे लाइक डेसिमल्स में चेंज. सो 6 के बाद जो कि कोई डेसिमल नहीं है तो हम लगा देंगे डेसिमल और लगा देंगे 2 zeros to convert it into like decimals. Then simply arrange it in column and do the addition to get the answer. Here I have explained you question number 2. Now let us move on to question number 3. Question number 3, the pattern of the question is again similar as question number 1 and question number 2, but only the series will be different here because we have to convert here the units in decimals of kilogram. Kilogram, that means the table of mass we have to follow here, table of weight. And the table of weight is kilogram, hectogram, decagram, gram, decigram, centigram, milligram.
सो सी, फर्स्ट पार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर, 5 किलोग्राम, सबसे पहला जो नंबर है वो किलोग्राम के साथ में ही है, तो 5 किलोग्राम का 5 किलोग्राम आप मेंशन करेंगे. Then, as I told you in question number 1 and question number 2 that you have to put the sign of addition in between the numbers and the units. So, after 5 kilogram, put addition sign 1 hectogram, then again addition sign 2 decagram, again addition sign 5 gram. Okay. Now, one by one we will be framing the formulas. तो पहला formula बनेगा हेक्टोग्राम और किलोग्राम के बीच में. So, किलोग्राम और हेक्टोग्राम के बीच में only one place का gap है, तो इसका formula हो जाएगा 1 kilogram is equals to 10 हेक्टोग्राम. सेकेंड फॉर्मूला बनेगा डेकाग्राम और किलोग्राम के बीच में. सो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 100 डेकाग्राम, क्योंकि इसके बीच में 2 प्लेसेस आ रही हैं. देन थर्ड फॉर्मूला बनेगा किलोग्राम एंड ग्राम के बीच में. सो किलोग्राम और ग्राम के बीच में आ रही हैं 3 प्लेसेस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1000. ओके, 3 प्लेसेस मीन्स 1000. नाउ अगेन इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कन्वर्ट द स्मॉलर यूनिट इनटू greater unit, so we will do division. Fine. So 5 kilogram will come as it is. Under 1 you have to put number 10 because हेक्टोग्राम के साथ में है नंबर 10. इस हेक्टोग्राम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम के अंदर, तो हम डिवाइड करेंगे 10 से. 2 डेकाग्राम, डेकाग्राम के फॉर्मूला में है 100, सो 2 को हम डिवाइड करेंगे 100 से और यूनिट चेंज हो जाएगी, डेकाग्राम का हो जाएगा किलोग्राम. देन यहाँ पे 5 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो 5 के नीचे आ जाएगा 1000 और यूनिट यहाँ पे भी चेंज होके हो जाएगी किलोग्राम. नाउ नीचे 10 आ रहा है तो आप एक डिजिट के पहले लगाइए डेसिमल, 100 आ रहा है 2 डिजिट्स के पहले लगाइए डेसिमल, 1000 आ रहा है तो 3 डिजिट्स के पहले लगाइए डेसिमल. देन नेक्स्ट स्टेप सेम, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक डेसिमल्स. लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 5 के अंदर डेसिमल नहीं है तो आप डेसिमल लगा के 3 प्लेसेस लगाइए, क्योंकि जो लास्ट नंबर है डेसिमल नंबर उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस हैं 3. सो सारे डेसिमल नंबर्स को हमको 3 प्लेसेस में कन्वर्ट करना होगा आफ्टर डेसिमल. 0.1 डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो 1 के बाद में हम 2 जीरोस और लगा देंगे टू कन्वर्ट इट इनटू 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल. देन 0.02, इसमें भी 2 प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद में, तो हम एक 0 पुट कर देंगे टू कन्वर्ट इट इनटू 3 प्लेसेस आफ्टर decimal, and this is already given in 3 places after decimal. Then arrange it in column and do the addition. You will get the answer as 5.125. Okay. Now in the same way students, you have to do the remaining parts of question number 3rd. Okay. So all the parts are similar, so I am not repeating it again and again. You please try solving it yourself, the remaining parts of question number 3. Now I am directly moving on to question number 4th, and in question number 4th we have to express in decimals of liter. Liter, that means we have to follow the table of capacity here, and the table of capacity is kiloliter, hectoliter, decaliter, liter, deciliter, centiliter, milliliter. Now again I am moving on with the A part of this particular question. So it is 5 decaliter, 8 liter, 3 deciliter, 2 centiliter and 5 milliliter. So in the first step we will write all the numbers with unit as it is, and along with that we will put one addition sign in between. So in between decaliter and 8 we will put addition sign, in between liter and 3 we will put addition sign, in between deciliter and 2 we will put addition sign, and in between centiliter and 5 we will put addition sign. Now we will be framing the formulas. अब वन बाय वन हम फॉर्मूला फ्रेम करेंगे. तो देखिए फर्स्ट यूनिट है डेकालीटर और हमें कन्वर्ट किस में करना है, लीटर के अंदर. तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेकालीटर और लीटर के बीच में. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, डेकालीटर और लीटर में से डेकालीटर ग्रेटर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप फॉर्मूला में प्लेस करेंगे 1 डेकालीटर, और डेकालीटर और लीटर के बीच में ओनली 1 प्लेस आ रही है, तो 1 प्लेस दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 10. और यहाँ पर डेकालीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है. तो आप देखिए डेकालीटर है बिगर यूनिट और लीटर है स्मॉलर यूनिट, और मैंने आपको 7A एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया था कि जब हम बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और जब स्मॉलर यूनिट को बिगर में करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 7B में, उसमें हम करते हैं डिवीजन. तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने फ्रेम करा है उसमें हमें क्या करना है, बिगर यूनिट को स्मॉलर में करना है, तो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ आप ब्रैकेट में मेंशन करिए मल्टीप्लिकेशन. नाउ सेकंड जो नंबर गिवन है उसके साथ में यूनिट है लीटर. सो लीटर तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा. थर्ड जो नंबर है उसके साथ में यूनिट है डेसीलीटर. तो अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लीटर और डेसीलीटर के बीच में. तो लीटर और डेसीलीटर में से ग्रेटर है लीटर,
तो पहले आप लिखेंगे 1 लीटर और लीटर और डेसीलीटर के बीच में आ रही है ओनली 1 प्लेस, दैट मीन्स आ जाएगा 10। यहाँ पे हम डेसीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉलर को बिगर में करेंगे, तो हम ब्रैकेट में डिवीजन पुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो यूनिट आ रही है क्वेश्चन में वो है सेंटीलीटर, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा सेंटीलीटर और लीटर के बीच में, तो लीटर और सेंटीलीटर में से स्मॉलर है लीटर, सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीलीटर। अगेन सेंटीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा डिवीजन। और लास्ट है मिलीलीटर, सो मिलीलीटर और लीटर के बीच में फॉर्मूला लगेगा, सो मिलीलीटर और लीटर के बीच में आती है 3 प्लेसेस, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। लीटर बड़ा है इसलिए लीटर पहले आएगा, और मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा डिवाइड। सो 4 फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे मेंशन करे, 4 में से जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसके साथ में होगा ओनली मल्टीप्लाई, बाकी तीनों के साथ में होगा डिवाइड। सो लेट्स बिगिन विद द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है डेकालीटर, तो डेकालीटर वाला फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, डेकालीटर के फॉर्मूला में मैंने ब्रैकेट में लिखा था मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे होगा, मल्टीप्लाई होगा 10 से। सो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और इस स्टेप में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कन्वर्टेड यूनिट है वो आपको मेंशन करनी है यहाँ पर इस स्टेप में। तो डेकालीटर चेंज हो जाएगा लीटर में, लीटर जो कि ऑलरेडी लीटर में गिवन था तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 8 लीटर। देन यहाँ पे जो डेसीलीटर है, डेसीलीटर वाला फॉर्मूला देखिए, इसके ब्रैकेट में गिवन है डिवाइड, और करना किससे है, 10 से डिवाइड, सो 3 के नीचे आ जाएगा 10, और डेसीलीटर भी चेंज हो जाएगा लीटर से। 2 सेंटीलीटर, सेंटीलीटर वाले फॉर्मूला में भी है 100 और ब्रैकेट में है डिवाइड, तो 2 के नीचे आ जाएगा 100, और ये यूनिट चेंज होके हो गई लीटर। नाउ 5 मिलीलीटर, मिलीलीटर वाले फॉर्मूला में है 1000 और इसको भी करना है हमें डिवाइड, सो 5 के नीचे आ जाएगा 1000 और यूनिट चेंज होके मिलीलीटर से हो जाएगी लीटर। नाउ 5 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 लीटर, 8 लीटर आ जाएगा एज इट इज। 3 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट के पहले आएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.3 लीटर। 2 को आप जब डिवाइड करेंगे 100 से तो 2 डिजिट के पहले आएगा हमारा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.02 लीटर। एंड 5 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.005 लीटर। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट यू विल डू, फर्स्टली पहले आप ये जो दोनों लीटर में गिवन है इनको ऐड कर दीजिए, 50 लीटर और 8 लीटर, दो यूनिट्स जो लीटर में गिवन है होल नंबर में गिवन है, डेसिमल में नहीं गिवन है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 50 और 8 को ऐड करेंगे आ जाएगा 58 लीटर। बाकी की जो 3 डेसिमल नंबर्स वाली यूनिट्स हैं वो आप एज इट इज लिख दीजिए, 0.3, 0.02 एंड 0.005। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल कन्वर्ट दिस अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, तो 58 के बाद में डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल लगा के लगा देंगे 3 जीरोस। 0.3 डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, हमें चाहिए 3 डिजिट, तो आप लगा देंगे इसके बाद में 2 जीरोस। और 0.02 डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, हमें चाहिए 3 डिजिट्स, तो हम 0.02 के बाद में भी एक जीरो लगा देंगे, और 0.005 एज इट इज आ जाएगा। नाउ सिंपली अरेंज इट इन कॉलम एंड देन फाइंड द answer of addition. So you will get the result as 58.325 liter. Okay students, now I am explaining one more part in this particular question, so let me decide which one. Okay, I am explaining B part only. It is having till C part, तीन ही parts हैं इसके अंदर, so B part मैं explain कर रही हूँ and C part you can do it yourself. See, it is 7 डेसीलीटर, 5 सेंटीलीटर एंड 4 मिलीलीटर, और क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमें कन्वर्ट करना है लीटर के अंदर। ओके, तो इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो लीटर के रिलेशन में बनेगा। सबसे पहले डेसीलीटर, तो डेसीलीटर और लीटर के बीच में 1 प्लेस का गैप है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीलीटर। डेसीलीटर को लीटर में करेंगे तो ब्रैकेट में आप मेंशन कर दीजिए डिवाइड। सेंटीलीटर और लीटर के बीच में फॉर्मूला बनाएंगे तो 2 यूनिट्स हैं यहाँ पर, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 लीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीलीटर। देन मिलीलीटर और लीटर के बीच में फॉर्मूला बनेगा तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ओके, देन तीनों ही स्मॉलर यूनिट्स को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो तीनों के साथ में ही हम करेंगे डिवाइड। सो 7 डेसीलीटर को हम डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि डेसीलीटर के फॉर्मूला में है 10। 5 सेंटीलीटर को हम डिवाइड करेंगे 100 से, एंड 4 मिलीलीटर को हम डिवाइड करेंगे 1000 से। ओके, एंड डिवाइड के साथ में ही आपको यूनिट चेंज कर देनी है, डेसीलीटर हो जाएगा लीटर, सेंटीलीटर भी लीटर और मिलीलीटर भी लीटर। देन सिंपली कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। सो यहाँ पर 10 है तो ये 1 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा 0.7, 100 है तो 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल आ जाएगा, दैट मीन 0.05, 1000 है तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा 0.004। अब
सिंपली लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए, 7 के बाद में लगा दीजिए 2 more zeros टू कन्वर्ट इट इनटू 3 places आफ्टर डेसिमल. 0.5 डेसिमल के बाद में 2 places हैं, आप एक और 0 लगा दीजिए तो हो जाएंगी 3 places and this is already 3 places given in the decimal number. Now again arrange it in column, find the answer of addition. So you will get the answer as 0.754 and please don't forget to mention the unit in the answer. It is compulsory for you all to put the unit in the answer. Okay, so now easily you can do the C part and C part is very simple also. C part के अंदर सिर्फ सेंटीलीटर गिवन है, इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, एक ही यूनिट गिवन है. सो सेंटीलीटर और लीटर के बीच में 2 places का गैप होता है. सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है, लीटर ग्रेटर यूनिट है, तो 100 आएगा डिनोमिनेटर में. 100 है दैट मीन्स 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल. सो 2 डिजिट के पहले डेसिमल आप सिंपली प्लेस कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.09 लीटर आंसर. सो I was telling you to do C part yourself and I have explained it here, C part also. Now, question number 5. This is the last question of this exercise and it is also having only 3 parts. So, let us move on with A part. All the 3 parts are very simple here. See, what we have to do, we have to convert it into kilometer. Kilometer, that means the table of length we have to follow here. So, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला लगाइए पहले. किलोमीटर और मीटर के बीच में 3 places का गैप होता है तो फॉर्मूले में 1000 आ जाएगा. और ग्रेटर क्या होता है किलोमीटर, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा किलोमीटर. मीटर को किलोमीटर में कर रहे हो दैट मीन्स आप 1000 से डिवाइड करोगे. डिनोमिनेटर में 1000 आ रहा है तो न्यूमरेटर में 3 places के पहले आ जाएगा डेसिमल. तो 3 places ऑलरेडी है हमारे पास में. सो 3, 3 और 5 के पहले लग जाएगा डेसिमल और डेसिमल को कवर कर दीजिए आप 0 से. ओके, सो दैट वाज सो सिंपल. And B part is also very simple. See, here we have to convert decameter into kilometer. Decameter को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और डेकामीटर और किलोमीटर के बीच में आती हैं 2 places. 2 places that means फॉर्मूले में आ जाएगा 100. So डेकामीटर जब किलोमीटर में चेंज होगा तो करेंगे हम डिवाइड. So 4734 को आप 100 से करेंगे डिवाइड. So यहाँ पर आप डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले न्यूमरेटर लिख देंगे. न्यूमरेटर के अंदर नंबर क्या है, हमारे पास में नंबर है 4734. So this is the numerator. Okay, पहले आप न्यूमरेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या है 100. दैट मीन्स डेसिमल आएगा 2 डिजिट्स के पहले. सो 4 और 3 ये 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, इसके पहले लगा देंगे आप डेसिमल्स. हमारा आंसर आ जाएगा 47.34 और यूनिट चेंज होके डेकामीटर से क्या हो जाएगी किलोमीटर. Now let us move on to the last part of this particular question and also the exercise. So it is 5 kilometer, 6 hectometer, 8 decameter and 3 meter and we have to convert it into kilometer. इसको किलोमीटर में करना है तो पहले सिंपली आप लगा दीजिए प्लस का साइन जैसा कि मैंने बताया था. नेक्स्ट स्टेप के अंदर फर्स्ट जो नंबर है वो ऑलरेडी किलोमीटर में है, एज इट इज आ जाएगा. सेकंड फॉर्मूला बनेगा हमारा हेक्टोमीटर और किलोमीटर के बीच में 1 प्लेस का गैप है तो हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 हेक्टोमीटर. सेकंड फॉर्मूला डेकामीटर और किलोमीटर के बीच में 2 प्लेसेस हैं तो 100. दैट मीन्स फॉर्मूला 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 डेकामीटर. थर्ड फॉर्मूला मीटर और किलोमीटर के बीच में 3 प्लेसेस हैं तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. Here also we have to convert all the smaller units into bigger units, so we will do division. So 6 को हम डिवाइड करेंगे 10 से क्योंकि हेक्टोमीटर के साथ में है 10. 8 को हम डिवाइड करेंगे 100 से क्योंकि डेकामीटर के साथ में है 100 और 3 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से क्योंकि मीटर के साथ में है 1000. ओके, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे सबकी यूनिट चेंज हो जाएगी. हेक्टोमीटर हो गया किलोमीटर, डेकामीटर भी हो गया किलोमीटर और मीटर भी हो गया किलोमीटर. नाउ सिंपली प्लेस द डेसिमल. 10 है सो 1 डिजिट के पहले आ जाएगा डेसिमल. 100 है 2 डिजिट्स के पहले आएगा डेसिमल और 1000 है तो 3 डिजिट्स के पहले आएगा डेसिमल. कैसे लगाना है डेसिमल वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ. नाउ नेक्स्ट स्टेप में वही हमें करना है, लाइक डेसिमल में चेंज करिए. सो 5 के बाद में डेसिमल नहीं है, हम डेसिमल खुद प्लेस करेंगे और उसके आगे लगा देंगे 3 zeros. यहाँ पे 0.6 एक ही डिजिट थी डेसिमल के बाद में और हाईएस्ट डिजिट्स हमें चाहिए 3 आफ्टर डेसिमल तो हम यहाँ पर लगा देंगे 2 zeros. 0.08 में 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल तो हम लगा देंगे एक और 0 तो हो जाएंगी 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल and 0.003 will come as it is. Now as I have told you earlier also arrange it in column to find the answer of addition. So after adding you will get the answer as 5.683. Okay students, so I hope all these questions from question number 1 to question number 5 is clear to you. Fine. So students, here I have given you the explanation of all the questions of exercise 7C and with this we have completed exercise 7C.
Students, please complete all your work till exercise 7C in your notebook, and remember, if anywhere you find any difficulty, then you can ask me in the live class of maths. Okay? So that's all for today. Now I will see you back in the next online class where I will be teaching you exercise 7D. Till then, please take good care of yourself. Thank you so much from my side.